Hello students, I am Pragati Kalambe, welcomes you all on my channel which is for 12 Commerce by Hukul Banking. I hope my videos are helping you all for the subject of banking. Today we are going to start the new topic, that is security for bank advances. Securities which are used as a collateral assets while borrowing loan. Borrower has to keep some security to the bank against the loan amount. The security has its charges, that is mortgage, pledge, hypothecation, lien and assignment, as we studied in the last video. In this video, we are going to study the various types of securities that bank accept as a collateral assets. You know what is the mean by collateral assets? The assets which are kept with the bank as a security. Okay. Now let's start with the meaning of types of securities. There are various types of securities against which bank lend loan to the borrower. Okay, बैंक के पास बहुत सारे securities है against which bank lend money or bank gives the money to the borrower, that is customer. There are some difficulties that bank may face and some precautions that bank should take while the sanctioning loan against the security. Okay, जब बैंक किसी भी कस्टमर से कोई भी अमाउंट या कोई भी सिक्योरिटी लेता है collateral assets, bank have to take some precautions while accepting that security, because bank may face some difficulty that may occur losses to the bank. Okay, there are many types of security. First, advances against real estate. Real estate, that means कोई भी assets, that is tangible assets हो सकता है, घर हो, society, building, land. Okay, that is a real estate. Advances against goods. Advances against document of title of goods. Document of title of goods means ownership documents. कोई भी goods की जो ownership documents होते document of title of goods. Advances against stock exchange. Stock exchange includes shares, debentures, bonds. Advances against life insurance policy. Okay, that means ये जो सारी चीजें, ये सारे सिक्योरिटी के टाइप से वो सिक्योरिटी के अगेंस्ट बैंक क्या करता है, लोन सैंक्शन करता है, एडवांस सैंक्शन करता है. ओके, so these are the types of security. In this video we will start with the first type, advances against real estate. Okay, real estate includes assets such as tangible assets like building, house, society, etc. Okay, रियल एस्टेट में tangible assets आते हैं, मोस्टली इमूवेबल assets इंक्लूड होंगे, बिल्डिंग, हाउस, सोसाइटी. फॉर एग्जांपल मुझे मेरे घर के अगेंस्ट लोन लेना है, मैं मेरा घर बैंक के पास रख रही हूँ, दैट मीन्स आई एम टेकिंग अ लोन और एडवांसेस अगेंस्ट द रियल एस्टेट. ओके, मेरा घर क्या हो गया, रियल एस्टेट हो गया. ठीक है, बैंकर एक्सेप्ट सच assets as a security only in exceptional cases, that is when the customer has no other security to offer. ओके, हमने यहाँ पे देखा रियल एस्टेट, यहाँ पे लिखा है कि बैंकर एक्सेप्ट सच सिक्योरिटी ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस. कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस ही, उसी केसेस में क्या होता है, रियल एस्टेट एक्सेप्ट किया जाता है एज अ सिक्योरिटी, जब व्हेन द कस्टमर हैज नो अदर सिक्योरिटी टू ऑफर. कस्टमर के पास दूसरा कोई भी पर्सनल एसेट्स नहीं है, उसी टाइप पे रियल एस्टेट क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है एज अ सिक्योरिटी. क्लियर? नेक्स्ट हम लोग फर्स्ट देखेंगे व्हाट आर द डिफिकल्टीज बैंक में फेस and which can occur the losses for the bank. Okay, first, ascertaining title of the owner. Now, what is the mean by ascertaining the title of owner? For example, मेरा एक हाउस है और हाउस के अगेंस्ट मुझे क्या करना है, लोन लेना है बैंक से. ओके, जब बैंक लोन लेगा, जब बैंक मुझे लोन देगा अगेंस्ट माय हाउस, बैंक को चेक करना है टाइटल ऑफ ओनर. दैट मीन्स ये घर है वो मेरे ही नाम पे है कि नहीं. ठीक है, वो घर की जो ओनर हूँ मैं हूँ कि नहीं. अगर ये घर की ओनर मैं नहीं हूँ, बैंक मुझे लोन नहीं दे सकता अगेंस्ट दैट हाउस. ओके, तो बैंक को क्या करना है, वो जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स है, वो ओनरशिप के डॉक्यूमेंट है, बैंक को क्या करने, चेक करने. तो बैंक को फर्स्ट डिफिकल्टी क्या आ सकती है, बैंक प्रॉपरली वेरीफाई नहीं कर सकता. फॉर एग्जाम्पल, वो जो हाउस है वो हाउस मेरे फादर के नाम पे, ठीक है, मतलब उसके रियल ओनर है मेरे फादर, बट मेरे फादर ने वो प्रॉपर्टी मुझे पास ऑन नहीं की है. ओके, तो वहाँ पे डिफिकल्टी आएगी बैंक को, दैट बैंक कैनॉट आइडेंटिफाई द प्रॉपर और लीगल टाइटल ऑफ द ओनर. वो घर का एक्चुअली ओनरशिप किसकी है वो ढूंढने में बैंक को क्या हो सकती है, डिफिकल्टी हो सकती है. सो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिफाइंग द लीगल टाइटल ऑफ द ओनर. ओके, बैंक हैज टू अपॉइंट अ सॉलिसिटर. Now, what is the mean by solicitor? Solicitor is a legal person or legal advisor
that act as a agent या that act as a legal advisor for the bank. बैंक के लिए वो काम करेगा एज ए लीगल एडवाइजर, और वो जो हाउस है या वो जो कोई भी रियल एस्टेट मैंने बैंक के पास रखी है उसका पूरा लीगली वो चेक करेगा, उसकी लीगल प्रोसेस चेक की जाएगी, उसको बोलते हैं सॉलिसिटर, और वो सॉलिसिटर के चार्जेस बैंक को पे करने पड़ेंगे। सो द फर्स्ट डिफिकल्टी इज असर्टेनिंग द टाइटल ऑफ ओनर। बैंक को क्या करना है, वो जो असेट्स है, वो जो कोलैटरल सिक्योरिटी है, उसका ओनरशिप प्रॉपर है कि नहीं, उसका टाइटल कोई भी फेक है या कोई प्रॉब्लम है क्या, वो चेक करना किसका काम है, बैंक का काम है, और बैंक को वो डिफिकल्टी आ सकती है। क्लियर। सेकेंड, लेंथी लीगल प्रोसेस। इट इंक्लूड्स अ वेरी लॉन्ग लीगल प्रोसेस। बैंक हैव टू फॉलो ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी बोला, मैंने घर का एग्जाम्पल लिया, वो जो हाउस है वो मेरे नाम पे नहीं, वो मेरे फादर के नाम पे। ठीक है, अगर मुझे उसी घर के अगेंस्ट लोन लेना है, उसी हाउस के अगेंस्ट अगर मुझे लोन लेना है, तो वो जो लोन की प्रोसेस, मुझे पूरी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। वो जो घर है, वो ओनरशिप जो है वो मुझे मेरे पेरेंट के नाम से, मेरे फादर के नाम से मुझे ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। इसके लिए बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़, और वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ मुझे फॉलो करनी पड़ेगी, उसके बाद ही मुझे लोन मिलेगा। क्लियर है। इनकेस अगर बैंक ने ये सारे प्रिकॉशन नहीं किए, बैंक ने ये प्रॉपरली टाइटल ऑफ ओनर चेक नहीं किया, बैंक ने ये सारे लीगल प्रोसीजर फॉलो नहीं किए, बैंक में ऑफर द लॉस इन केस ऑफ डिफॉल्ट। अगर इन केस इन फ्यूचर मैंने रीपेमेंट नहीं किया तो बैंक को क्या होगा, लॉस हो सकता है, क्योंकि बैंक ये असेट बाद में सेल नहीं कर सकता। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जामिनेशन ऑफ प्रायर चार्ज। ओके, व्हाट इज मीन बाय प्रायर चार्ज। प्रायर मीन्स पहले उसी असेट्स पे अगर प्रायर नहीं, मतलब पहले मैंने प्रीवियसली अगर मैंने उसी असेट्स पे या उसी हाउस पे मैंने अगर लोन लिया है, तो बैंक को चेक करना पड़ेगा कि मैंने उसके कोई भी प्रायर चार्ज है कि नहीं। देयर शुड नॉट बी एनी प्रायर चार्ज ऑन द कोलैटरल असेट। ठीक है, मतलब एक ही रियल एस्टेट पे, एक ही असेट पे, एक ही कोलैटरल असेट पे आप दो टाइम या डबल टाइम आप लोग लोन नहीं ले सकते। ठीक है, और बैंक को ये चेक करना। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ सिक्योरिटी। प्राइस ऑफ रियल एस्टेट हैव लो लिक्विडिटी, दैट मीन्स इट कैन इजीली कन्वर्ट इनटू कैश। ओके, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक हाउस है और मैंने उसका रीपेमेंट नहीं किया, बैंक ने क्या किया, उसको ओनरशिप बैंक के पास चली गई। नाउ बैंक क्या करेगा, बैंक को पैसा चाहिए, बैंक क्या करेगा, उसका ऑप्शन करेगा। बट रियल एस्टेट ऐसा है जहाँ पे बैंक को इजीली मार्केट अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, ऐसा असेट्स जहाँ पे लिक्विडिटी बहुत लो है, दैट मीन्स इट कैन नॉट ईजिली कन्वर्ट इनटू कैश। हम लोग रियल एस्टेट इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बहुत प्रोसीजर फॉलो करनी है, लीगल प्रोसीजर, लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ती है। ओके, नेक्स्ट इज marketability. Marketability means having a ready market to sell the security. In case of real estate, such security does not have easy access to market as they require many legal formalities. Okay? कोई भी घर अगर सेल करना है और उसका ऑप्शन करना है तो बैंक को इजीली सेल नहीं कर सकती। कोई भी पर्सन इजीली बैंक के पास जो घर है एज अ मॉर्गेज, कोई भी पर्सन इजीली परचेस नहीं करेगा, उसको बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज फॉलो करनी पड़ेगी। सो दिस इज अ डिफिकल्टी फेस बाय बैंक while accepting real estate as a security. ओके, समझ में आया। वो उससे देखेंगे हम लोग, एक बार रिवाइज करेंगे। असर्टेनिंग द टाइटल ऑफ ओनर, दैट मीन्स बैंक को क्या डिफिकल्टी आएगी, जो असेट्स है वो प्रॉपरली उसका ओनरशिप किसके पास है ये देखना पड़ेगा। बहुत लेंदी प्रोसेस, सारे लीगल फॉर्मेलिटीज फॉलो करनी पड़ेंगे, उसके लिए सॉलिसिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन ऑफ द प्रायर चार्ज, सेम रियल एस्टेट पे कोई प्रायर चार्ज है कि नहीं, अगर कोई प्रायर लोन लिया है कि नहीं, ये बैंक को चेक करना पड़ेगा। प्राइस ऑफ सिक्योरिटी, ओके, लो लिक्विडिटी होगी, कोई भी रियल एस्टेट इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज है। मार्केटेबिलिटी, कोई भी इजीली मार्केट में रियल एस्टेट सेल नहीं कर सकता और परचेज भी नहीं कर सकता। ओके, बहुत सारे प्रोसीजर से इसको जाना पड़ेगा। जैसे हम लोग लोन अगर गोल्ड के अगेंस्ट हमने लोन लिया तो गोल्ड इजीली हम लोग सेल कर सकते हैं, वैसे हम लोग हाउस इजीली सेल नहीं कर सकते। सो यहाँ पे मार्केटेबिलिटी का बहुत बड़ा इशू आता है। ओके, अभी तक हमने देखे ये थे क्या थे, डिफिकल्टीज फेस बाय बैंक। बैंक अगर रियल एस्टेट के अगेंस्ट लोन देता है तो बैंक को ये डिफिकल्टीज फेस होती है। ओके, नाउ ये डिफिकल्टी से ओवरकम करने के लिए बैंक को क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़े। क्लियर, इसलिए हमने स्टार्टिंग के पॉइंट में देखा था कि जब भी कभी बैंक रियल एस्टेट के अगर लोन देती है, ओनली द लास्ट पॉइंट होता है कि बैंक रियल एस्टेट के अगेंस्ट लोन देगी। जिसके पास दूसरा कोई भी पर्सनल असेट्स नहीं है जिसके अगेंस्ट बैंक लोन लेगी, तभी बैंक रियल एस्टेट का ऑप्शन को यस बोलती है।
अदरवाइज रियल एस्टेट के अगेंस्ट बैंक लोन देने के लिए रेडी नहीं होता। ओके क्योंकि बहुत सारी डिफिकल्टीज बैंक को फेस करनी पड़ते हैं इन केस ऑफ डिफॉल्ट। अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर कल तो बैंक को ये सारे प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते। ओके अभी हम लोग देखेंगे ऐसे कौन सी प्रिकॉशंस है कि बैंक ने लेनी चाहिए बिफोर सैंक्शनिंग द लोन अगेंस्ट रियल एस्टेट। द फर्स्ट प्रिकॉशन इज फाइनेंशियल एबिलिटी। द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बोरोअर शुड चेक। ओके व्हाट इज मीन बाय क्रेडिट वर्दीनेस? जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग में हमने देखा था क्रेडिट वर्दीनेस। क्रेडिट वर्दीनेस मीन्स फाइनेंशियल एबिलिटी एंड फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द बोरोअर। अगर बोरोअर रियल एस्टेट के अगेंस्ट लोन ले रहा है तो उसकी फाइनेंशियल एबिलिटी एंड फाइनेंशियल कैपेसिटी चेक करनी चाहिए बाय द बैंक। उसकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है कि जो वो लोन रिपे कर सके तभी बैंक क्या करेगी उसको लोन प्रोवाइड करेगी। सेकेंड इज एग्जामिनेशन ऑफ टाइटल। ओके हमने डिफिकल्टी में फर्स्ट पॉइंट देखा था असर्टनिंग द टाइटल ऑफ द ओनर। ओके मतलब क्या है जहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है उसकी जो ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स है वहां पे बैंक को डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। तो प्रिकॉशंस में हम लोग लिखेंगे एग्जामिनेशन ऑफ टाइटल। जो टाइटल डीड है उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स है ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स ऑफ द प्रॉपर्टी की जो ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स है रियल एस्टेट की वो बैंक को क्या करने प्रॉपरली चेक करने प्रॉपरली वेरिफिकेशन ऑफ द टाइटल डॉक्यूमेंट्स। प्रॉपर वेरिफिकेशन करना है उसका ओनर वही है कि नहीं या कोई भी मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है कि नहीं ये बैंक को क्या करना है चेक करना है। द थर्ड पॉइंट इज वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। वैल्यूएशन ऑफ रियल एस्टेट इज डिफिकल्ट सो द बैंकर शुड टेक द प्रिकॉशन। ओके वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी का मीनिंग है वो जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी की प्रॉपर वैल्यू क्या है। ओके वैल्यूएशन दैट आल्सो इंक्लूड्स द मार्केट प्राइस ऑफ दैट प्रॉपर्टी। ओके इन केस ऑफ अ डिफॉल्ट अगर बोरोअर ने रीपेमेंट नहीं किया तो बैंक क्या करेगा बैंक को प्रॉपर्टी सेल करेगा। अब जो बैंक को प्रॉपर्टी सेल करेगा तो बैंक को वो प्रॉपर्टी की कंप्लीट वैल्यू एंड द मार्केट प्राइस पता होनी चाहिए तभी वो क्या करेगा सेल कर सकता है। बट इन केस ऑफ रियल एस्टेट उसकी प्राइजेस बहुत अप एंड डाउन हो जाते हैं। वो जो लैंड है लैंड का अप्रिसिएशन हो सकता है वो जो बिल्डिंग है बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन हो सकता है तो वहां पे बहुत कैलकुलेशंस में कंफ्यूजन हो सकता है। सो बैंक को क्या करना है जब वैल्यूएशन हो जाएगी प्रॉपर्टी की तो बैंक को उसके प्रॉपरली प्रिकॉशंस लेना है और कंपलसरी लीगल ऑफिसर लीगल एडवाइजर से ही उसका वैल्यूएशन करवा के लो। क्लियर? नेक्स्ट इज प्रायर चार्ज। द एस्टेट शुड बी नॉन इंक्यूबेट। इट मीन्स कि वहां पे कोई भी प्रॉपर चार्ज नहीं होना चाहिए उसी असेट्स पे उसी कोलैटरल असेट पे कोई भी प्रॉपर लोन नहीं लिया जाना चाहिए। मतलब एक ही असेट पे दो बार अगर लोन लिया है तो वहां पे बैंक को डिफिकल्टी हो सकती है इन केस ऑफ डिफॉल्ट। ओके तो वहां पे बैंक को चेक करना है किसी भी बोरोअर ने अगर कुछ भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है मिसलीड किया है बैंक को तो बैंक को सारे डॉक्यूमेंट्स सारे टाइटल डॉक्यूमेंट सारे ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली चेक करने उसके प्रॉपरली वैल्यूएशन करना है और उसके बाद ही क्या करना है उसके अगेंस्ट लोन सैंक्शन करना है। क्लियर? थैंक यू। ओके अभी हमने देखा डिफिकल्टीज एंड प्रिकॉशंस फेस्ड बाय बैंक व्हाइल सैंक्शनिंग लोन अगेंस्ट रियल एस्टेट। ओके अब एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे। डिफिकल्टीज क्या क्या हो सकती है? असर्टनिंग द टाइटल ऑफ ओनर। टाइटल ऑफ ओनर ढूंढने में बैंक को डिफिकल्टी आ सकती है उसके लिए बैंक को एक सॉलिसिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। वहां पे बहुत ज्यादा लेंथी और लीगल फॉर्मेलिटीज होती है तो बैंक को फॉलो करनी पड़ेगी। एग्जामिनेशन ऑफ प्रायर चार्ज उस असेट पे कोई भी प्रायर चार्ज है कि नहीं वो बैंक को चेक करना पड़ेगा। प्राइस ऑफ सिक्योरिटी दैट मीन्स ऐसे रियल एस्टेट की प्राइस कितनी है और उसकी जो लिक्विडिटी है वो बैंक को चेक करनी पड़ेगी। मार्केटेबिलिटी उस असेट्स को सेल करने के लिए इजीली मार्केट अवेलेबल है या नहीं ये बैंक को चेक करना पड़ेगा। ओके तो बैंक क्या क्या प्रिकॉशंस लेगी? सबसे पहले फाइनेंशियल एबिलिटी दैट मीन्स फाइनेंशियल एबिलिटी एंड फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द बोरोअर चेक करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन ऑफ टाइटल प्रॉपर वेरिफिकेशन करना पड़ेगा सारे डॉक्यूमेंट्स का। वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करना पड़ेगा एंड प्रायर चार्ज उसी असेट्स पे कोई भी प्रायर चार्ज है या नहीं ये बैंक को चेक करना है। ओके कोई भी लॉस ना हो अगेंस्ट रियल एस्टेट के अगेंस्ट लोन देते हुए कोई भी लॉस ना हो तो बैंक को ये सारे प्रिकॉशंस लेने हैं। ओके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एडवांसेस अगेंस्ट गुड्स। थैंक यू।